Hello, good afternoon, everyone. My name is Vikas, and today we are going to have a session on cyber safety and security. Before I start, please confirm if I'm audible to you. Okay, thank you. So I'll just start my screen share. Okay, so is the PPT visible to all of you? Okay. So my friends, today's topic is cyber safety and security. And you may be wondering that what is important in this topic and why we all are having a session on this topic. So the truth is, today we live in a digital world. We live in a world where we all are surrounded with something, or many things I can say, which is connected to this world through internet. Like I have one example, this mobile phone, the laptop through which I am connected, my smartwatch, and many other things. We all are somehow living in a digital world. It doesn't matter if you are not using smartwatch, you are not using laptop, you are not using a smart mobile. That doesn't mean you are not in a digital world. You have a bank account, and that bank operates everything digitally. You go to your school stores most of the data digitally. So we are in a digital world. Internet and smart gadgets are now the integral part of our life, and more sensitive and valuable data artifacts being stored and moved across digitally. See, let's take a very common example. काफी आसान से एग्जांपल लेते हैं. आज से कुछ साल पहले जो मेमोरेबल इवेंट्स होते थे हमारे यहाँ, उनकी जो मेमोरीज होती थी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, उसको हम लोग क्या करते थे, एल्बम्स में स्टोर किया करते थे. बट टुडे व्हाट वी डू, आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं, लास्ट में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करते हैं, डिलीट करते हैं जो ब्लर्ड पिक्चर्स हैं, जो रिपीटेड पिक्चर्स हैं. लास्ट में जो फाइनली जो सिलेक्टेड पिक्चर्स हैं उनको हम अपनी गैलरी में छोड़ देते हैं एंड उसका बैकअप अपने क्लाउड स्टोरेज पर दे देते हैं. सो हमने वहां भी डिजिटली यूज किया है. अब जो शादियां होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, अगर आपके घर में या आपके आसपास शादी हुई होगी तो आपको पता होगा, जो फोटोग्राफर जो एल्बम्स बना के देते हैं वो उनका एक डिजिटल एक्सेस देते हैं कि आप इसको सॉफ्ट कॉपी में कभी भी देख सकते हो, आपके फोन में एक उसकी कॉपी रहेगी. सो somehow we all are connected, we all are in digital world. Now the second question is why we the teacher are being chosen to do this training. So the question is, we the teachers definitely are in the digital world. More than us, our students used to roam around in this world, they enjoy this world. So are they safe? Are the students who are using internet, who are using various social media websites and following you or their friends on those social media, they play online games, they watch videos, are they actually safe? Now, to answer this question and to learn more about cyber safety, we will have the session in 4 parts, and it will go like: the first part will be cyber security threats, the second will be cyber safety awareness, the third will be cyber safety and security, and the fourth will be cyber security initiatives in India. So let's come to the first. The objective of the session is, we want to increase awareness related to cyber threats and vulnerabilities. We want to collaborate to promote ethical mindset. We want to build a cyber security culture within the organization and communities. More than that, we also want to empower individuals to protect themselves, their learners, and their information online. We want to promote best practices for cybersecurity, and we want to empower our students to become resources for increasing awareness on cyber threats. We will discuss each and every topic in detail. So, the first part, cybersecurity threats. See, this is a statistical data. You have to understand this. Cybercrime is a major issue, and it is no way different from any other crime happening in society. If you consider kidnapping, if you can consider uh,
asking for bribe, if you consider murder is a crime, cyber crime, any kind of cyber crime is also the same kind of crime. It is not having any difference. Now, it is even more dangerous. How? Because the crimes which we see in the physical world, where a physical victim is present and where a person whom we say criminal is present. But in this cyber world, we do not have any geographical boundaries. हमारी कोई geographical boundaries नहीं है. जो hackers हैं, जो scammers हैं, वो इंडिया में बैठ के किसी भी कंट्री में हैकिंग कर सकते हैं, साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपके बैंकिंग डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. So they affect all the stakeholders from government agencies, educational institutions, businesses, and citizens alike. They do not see any difference. आप जितने अच्छे पोस्ट में, आप जितने अच्छे फाइनेंशियली हैं, आप पे खतरा उतना ज्यादा होता जाता है. आप जितने पॉपुलर होते जाते हैं, आप पे खतरा उतना ज्यादा होते जाता है. लेट्स टॉक अबाउट सम डेटा कि कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए, कितने केसेस रिपोर्ट हुए. सो 2018 इट वाज 27,248. 27,248 केसेस रिपोर्ट किए गए. एंड यू नो अबाउट आवर कंट्री, हमारे यहाँ ज्यादातर केसेस स्पेशली अबाउट साइबर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं किए जाते. आफ्टर दैट ऑल्सो 2018 में 27,248 केसेस आए. 2019 में ये बढ़ के 44,735 तक पहुंचा एंड 2020 में 50,035. वी आर इन 2024. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 सालों में भी कितना बढ़ा होगा. सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, काफी ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, और अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी अवेयर करने की जरूरत है. नाउ, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स. अगेन द क्वेश्चन कम्स, स्कूल्स क्यों, टीचर्स क्यों? दिस इज द आंसर. Indian educational sectors are the biggest target of cyber attacks, and the data is 58%. रिसर्च में पाया गया कि जो इंडिया बेस्ड स्कूल्स हैं, जो इंडिया बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे 58% के थ्रेट्स हैं. नाउ, किस टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम क्या क्या हो सकती हैं? तो क्रिमिनल एक्टिविटी, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग. साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम है जिसमें आपके कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर नेटवर्क को एज अ टूल यूज किया गया, या एज अ टारगेट यूज किया गया, या फिर अ प्लेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज के तौर पे यूज किया गया. वहां पे आपका कंप्यूटर, आपका कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, जो कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, वो यूज किया जा सकता है, या फिर उसके नेटवर्क को यूज किया जा सकता है. और ऐसा करके बेसिकली 2 चीजें की जाती हैं. पहला डिस्ट्रक्शन, रैकिंग, या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स किए जाते हैं, डॉस अटैक्स जिनको कहा जाता है. इनके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है फिशिंग, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा. जामतारा जैसी वेब सीरीज हैं जो हमेशा लोगों का ध्यान खींचती हैं फिशिंग की तरफ. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, बैंक्स भी काफी ज्यादा अवेयर करते रहते हैं हमें हमेशा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड्स के बारे में. स्टॉकिंग कैन बी न्यू फॉर दोज हु आर नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. सो हम लोग बात करेंगे स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग की. इलीगल डाउनलोडिंग, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग इलीगल मानते ही नहीं है. एंड ये आपने ध्यान दिया होगा, सपोज अभी मकर संक्रांति थी, आप सभी ने क्या किया होगा, आप गूगल पे गए होंगे, मकर संक्रांति विशेष सर्च किया होगा आपने, आपको कुछ लाइंस मिली होंगी, आपने वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, या फिर आपने पिक्चर्स डाउनलोड किए होंगे और उनको शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको भेज दिया. मूवीज के साथ भी यही होता है. कोई नई मूवी आई, आपको देखने का मन है, बट यू डू नॉट वांट टू गो टू थिएटर, तो आप क्या करते हैं, टोरेंट का यूज करते हैं, वीपीएन का यूज करते हैं, आप मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं, उसको घर पे देख लेते हैं. हॉल प्रिंट होती है फिर भी चलता है. सो दिस इज इलीगल डाउनलोडिंग एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, बेसिकली ये इस तरीके का अटैक है जिसमें आपका कोई भी गैजेट जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. रीजन बीइंग, हैकर्स और स्कैमर्स उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी सर्विसेज को वो डिनाई करवा देते हैं, सो दैट दे कैन अर्न समथिंग और दे कैन स्टील डेटा. मीनवाइल जब आप यूज नहीं कर रहे तो वो डेटा चुरा सके या आपसे रैंसम मांग सके. चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यू ऑल नो, रैंसमवेयर, जहाँ पे अगेन
डॉस अटैक करके आपसे पैसे की डिमांड की जाए या फिर आपके डेटा वगैरह को लॉक करके आपसे पैसे की डिमांड की जाए कि आप उतने पैसे दो, अदरवाइज आपकी ये सारी सर्विसेज ठप रहेंगी। आई थिंक लास्ट ईयर का एग्जांपल है, आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, एम्स दिल्ली में ऐसा हुआ था रैनसमवेयर अटैक। बैंक रॉबरी मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रॉबरी जिसमें 2-4 गुंडे जा रहे हैं, चेहरे पे मास्क वगैरह लगा के बंदूक से फायर कर रहे हैं, बोले कि चलो सारा पैसा निकालो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट ई रॉबरी, जहाँ पे हैकर अपने घर पे बैठे-बैठे सारे पैसे उड़ा दे रहा है। ट्रैफिकिंग, नो, ट्रैफिकिंग इज़ समथिंग इट्स नॉट अबाउट वेयर एक पर्सन को किडनैप करके दूसरे देश में भेज दिया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिकिंग इज़ समथिंग, सपोज़ मैंने एक वेबसाइट बनाई, नाउ वो वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो रही है। यहाँ पे हैकर्स और स्कैमर क्या कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नुकसान के लिए या उनके पर्सनल प्लेज़र के लिए, मेरे से पैसे लेने के लिए या और भी कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वो ट्रैफिक बर्स्ट करते हैं, मीन्स मान लीजिए जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जाएँगे तो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज कितना विज़िट होगा, ट्रैफिक क्या होगा आपके वेबसाइट पे? तो उसके अकॉर्डिंग सर्वर लोड दिया जाता है। अब सपोज़ मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की 50,000 पर डे के विज़िट्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे वेबसाइट को उतना सर्वर लोड दिया जाएगा। बट वो क्या करेंगे, अचानक 1 लाख या 2 लाख ट्रैफिक्स उस पे दिखा देंगे। अब ये फेक है। होगा क्या, जो रियल यूज़र्स हैं, जो जाना चाहते हैं वहाँ, वो नहीं जा पाएँगे। मैं कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में बता सकता हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनको ओपन करके देख लीजिए। आप नॉर्मल प्रोसीजर है, आप कोशिश करते होंगे अगर रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए जैसे ही आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं राइट टू सर्विस पोर्टल पे, आपने देखा होगा कि वो पोर्टल जल्दी काम ही नहीं करता। रीज़न बीइंग, लोग उसको गलत तरीके से हैक करके, उस पे ट्रैफिकिंग करके उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पे पहले ये काफ़ी ज़्यादा होता था, हालाँकि चीज़ें अब सुधरी हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस। वायरस को क्रिएट करना या फिर वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करना भी साइबर क्राइम है, एंड आफ्टर दैट हैकिंग इज डेफिनेटली अ साइबर क्राइम। नाउ, जो 3 बिगेस्ट करंट साइबर थ्रेट्स हैं जिसके बारे में स्कूल्स को अवेयर होना चाहिए, वो है फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स एंड रैंसमवेयर। ये 3 सबसे, ये वैसे साइबर थ्रेट्स है जिन पे मोस्ट कॉमनली स्कूल्स पे ये अटैक्स होते हैं। तो स्कूल्स, द मेंबर्स ऑफ स्कूल, द रिसोर्सेज ऑफ स्कूल, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो कम से कम इन 3 अटैक्स से बचा रहे। नाउ, व्हाई आर स्कूल्स द टारगेट? इन पे क्यों टारगेट किया जा रहा है? रीजन इज वास्ट अमाउंट ऑफ प्राइवेट डेटा। स्कूल्स के पास काफी ज्यादा अमाउंट में प्राइवेट डेटा है। नेक्स्ट, ये प्राइवेट डेटा है किसका किसका? स्टूडेंट्स का है, स्टाफ का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, इवन एलुमनाई का हो सकता है। जो हमारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनका भी हमारे पास डेटा होता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, व्हाट वी डू इफ यू आर अ कंप्यूटर टीचर, आप रिलेट कर पाएंगे इससे कि आपके स्कूल का सारा डेटा संभालने की जिम्मेवारी लगभग आपकी होगी। कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए, आपको बुला लिया जाता होगा। और मैं सारे स्कूल्स की बात नहीं करूंगा, बट लगभग स्कूल्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में उनका पैसा कम से कम खर्च हो। स्पेशली इन सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर के लिए वो दे देंगे क्योंकि हार्डवेयर दिखता है उनको कि हाँ ये सामान, ये मशीन आई है। सॉफ्टवेयर पर पैसा लगाना उनको रीजनेबल शायद नहीं लगता, तो वो अ, कहीं से एमएस ऑफिस जुगाड़ लिया आपने, कहीं से कोई और ओपन फाइल जुगाड़ ली, कोई क्रैक्ड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आपने यूज कर लिया, है ना? अभी तक आप विंडो 7 पे चला रहे हैं या विंडो 8 पे चला रहे हैं, रीजन कि वो फ्री है, वहां लाइसेंस का डिमांड नहीं हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आउटडेटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगेन मैंने जैसा पहले ही कहा कि अगर आप कंप्यूटर टीचर आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके स्कूल में कोई भी काम होता है, आपको जाना है ना, आपको करना है, भाई आप कंप्यूटर टीचर है, आपके ऊपर प्रेशर है। बट दिस इज नॉट, कंप्यूटर लैब है, आप 40 कंप्यूटर है, उनमें भी आप ही को देखना है। हो सकता है आपको एक लैब असिस्टेंट मिलता होगा कि भाई कंप्यूटर लैब के लिए मिल जाए। ऑफिस के कंप्यूटर लैपटॉप्स को आपको ही देखना पड़ जाए। अगर कोई फाइल नहीं खुल रहा है तो भाई कंप्यूटर वाले सर से पूछ लो। अब स्कूल में 4 या 5 कंप्यूटर वाले सर है तो उनको संभालना है। तो रिसोर्सेज आर डेफिनेटली लिमिटेड। लोग नहीं समझ रहे हैं कि डेटा को कैसे स्टोर करना है। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, एंड वो होना भी नहीं चाहते बिकॉज दे आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। बट उनका जो ये कंफर्ट जोन है, वो इंटरनेट वर्ल्ड पे जो क्रिमिनल्स है, जिनको हम हैकर्स, स्कैमर्स कहते हैं, उनके लिए फायदा पहुंचाता है। नाउ, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
नाउ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके रखा है। द फर्स्ट वन इज बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, processes and practices designed to protect networks, devices, programs, and data from attack, damage, or unauthorized access. Second one is means through which people can defend themselves. And the last one is combination of cyber ethics and tools to protect individuals from inappropriate content and behavior और साइबर फ्रॉड। मैं कॉमन भाषा में बता देता हूँ। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए 3 चीजें जो चाहिए वो क्या है? सबसे पहली चीज है कि वैसे प्रोसेसेस हों, वैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो, उस तरीके से प्रोटेक्टेड नेटवर्क्स, डिवाइसेस और प्रोग्राम्स डिजाइंड हो ताकि साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो। सेकंड चीज है कि जो भी लोग सीख कर रहे हैं साइबर सेफ्टी को, उनके पास ये मीन्स अवेलेबल हो और उनको इस बात की जानकारी हो ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड सबसे लास्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ साइबर एथिक्स, है ना? साइबर एथिक्स को फॉलो करना, टूल्स के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। जब आप ये तीनों चीजें करेंगे तब आप इंश्योर करेंगे कि आप साइबर सेफ हैं, आपने साइबर सिक्योरिटी संभाल कर रखी है ना? साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक मूवी का डायलॉग है कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाता हूँ। साइबर सिक्योरिटी के मामले में वो नहीं करना है, क्योंकि आप मौत को छूने जाएंगे तो सारे पैसे उधर रह जाएंगे, फिर आप वापस आएंगे, आपके अकाउंट के पैसे वापस नहीं आएंगे। सो वहां हमें ध्यान रखना है। अगेन, वाई साइबर सिक्योरिटी? में भी आपके पैसे ना जा रहे हों, बट स्टूडेंट्स डेटा, पेरेंट्स, टीचर्स इंफॉर्मेशन, अदर स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशन जा सकता है। पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, PII जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, PHI, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कोई हो, या फिर दूसरा कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सी, इन टुडेज वर्ल्ड जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है वो है डेटा। नीड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और cyber safety and security is such a vast topic that I took personally 1 month training on this topic so that to understand. So practical training session 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा। You can request पाटलिपुत्रा सहोदया कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकल्स किया जा सके, उसके लिए हमें अगेन रिसोर्सेज काफी ज्यादा चाहिए होंगे। Now let's come back to the topic. So आज के टाइम में डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसे आप कमा लेंगे बट डेटा का लॉस जो हुआ उसकी रिकवरी नहीं है। आप इस बात को इतने छोटे तरीके से समझिए कि आप इंटरनेट पे जब भी कोई चीज पोस्ट करते हैं वो वहां रह जाती है, वो वहां से डिलीट नहीं होती। आपने अपने फोन में कोई डेटा स्टोर किया, आपको लगता है मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। आपको लगता है आप उसको फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट हो जाएगा। नो, वो अब एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी सर्वर में, किसी न किसी स्पेस में वो रहेगा। और कोई ना कोई ऐसा हैकर, कोई ना कोई ऐसा स्कैमर होगा जो आपके उस डेटा को चोरी कर सकता है। सो हमें क्या करना है कि जो भी डाटा हम लोग ऑनलाइन पुट कर रहे हैं, पहली चीज हमें उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर हमने पुट कर दिया तो अब हमें ध्यान रखना है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट, अगेन मैंने बात किया था इन्हीं का, पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन, almost always the weakest link in an organization's cyber resiliency must be trained to recognize cyber threats and social engineering. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर थ्रेट्स होते हैं तो जो सबसे पहला फैक्टर है वही लोगों का सबसे कमजोर चीज है। ये सबसे कमजोर, आप कह सकते हो ये लूप है, सबसे वीकेस्ट लूप है ये, क्योंकि लोग को समझ में नहीं आता कि साइबर थ्रेट्स हैं उनके ऊपर। एक काफी फेमस लाइन कही गई एक काफी फेमस पर्सनालिटी के द्वारा कि इस दुनिया में बस 2 तरीके के लोग हैं, या आप कह सकते हैं इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में। पहली वो जिनको कभी ना कभी हैक किया गया, जिनके साथ कभी ना कभी स्कैम हुआ, और दूसरे वो हैं, आप गेस कर रहे होंगे जिनके साथ नहीं हुआ, बट दूसरे वो हैं जिनको पता नहीं है कि उनके साथ हैकिंग हो चुकी है या उनको स्कैम किया जा चुका है। रीजन क्या है, क्यों नहीं पता उनको? बिकॉज वहां जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वहां, वो ट्रेंड नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि कोई साइबर थ्रेट है कि नहीं, उनके साथ कोई सोशल इंजीनियरिंग हो रही है कि नहीं, कोई फिशिंग अटैक हो रहा है कि नहीं, डॉस अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ, वो
रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे उसको। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए। जो भी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं वो अपनाएं, सो दैट टू अवॉइड द साइबर अटैक्स इन रियल टाइम। रियल टाइम में साइबर अटैक्स को रोकना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि एंटीवायरस लाए और डाल के छोड़ दिए। टेक्नोलॉजी वाले में हम लोग ये बात करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अपनानी चाहिए। ऐसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स या डिफेंसिव एआई इंस्टॉल करनी चाहिए, सो दैट उनका स्कूल प्रोटेक्टेड रहे, उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टेड रहे। बट अगेन, ऐसा नहीं करना है कि सॉफ्टवेयर डाल दिया छोड़ दिया, अब रिसोर्स हायर नहीं करेंगे हम कि है एआई कर लेगा। एआई हर काम नहीं कर सकता। मैं आपको काफी कॉमन एग्जांपल में अगर बताऊं, सपोज आपने एक महंगी सी गाड़ी ली और घर के बाहर आप पार्क कर रहे हैं उसको, आप हैंडल लॉक करते हैं, पहला सिक्योरिटी फीचर। आप उसमें एडिशनल लॉक्स इंस्टॉल करवा के उसको भी लॉक कर देते होंगे, सेकंड सिक्योरिटी फीचर। एक और काम करते हैं हम लोग, वो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना। बट क्या सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी फीचर है? क्या वो उस गाड़ी को चोरी होने से बचा देगा? अगर मैं गाड़ी लॉक ना करूं तो क्या सीसीटीवी कैमरा गाड़ी को चोरी होने से बचा सकता है? कमेंट करिए यस और नो। नो, डेफिनेटली नो। सीसीटीवी कैमरा गाड़ी को चोरी होने से बिल्कुल नहीं बचा सकता। सीसीटीवी कैमरा बता सकता है कि चोरी किसने की, अगर वो ऑन रहा तो, है ना। यस यस, आई गॉट योर आंसर। नो। सो एंटीवायरस के साथ ये कई सारी एंटीवायरस हमारे पास ऐसी हैं जो बताती हैं ये कि आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, आपके फाइल में ट्रोजन हॉर्स पाया गया। मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला वायरस है ट्रोजन हॉर्स मिला। बताने से क्या फायदा है? हमें एक ऐसा एंटीवायरस रखना है कि वो आने ना दे, वो रियल टाइम में उसको पकड़े, रियल टाइम में इंटरवीन करे, रियल टाइम में उसको रोके। ऐसा नहीं कि बाद में बता रहा है कि सर आपके फाइल में ना रैंसमवेयर आ गया है, आपके फाइल में ट्रोजन हॉर्स आ गया, अब मुझे इसको डिलीट करना है। देयर इज नो बेनिफिट। आपका डेटा कई सारा चोरी हो चुका होगा, कई सारे डेटा ट्रांसफर हो चुके होंगे, आपकी फाइल्स करप्ट हो चुकी होंगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क? द फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये इंश्योर करता है कि आपका इन्फॉर्मेशन सेफ है, वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, ना ही एक्सीडेंटली ना ही इंटेंशनली। कोई उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहा है किसी बैड इंटेंशन से तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा। किसी से गलती से भी अगर वो डिस्क्लोज होने वाला है तो भी वो डिस्क्लोज ना हो। साथ ही साथ प्रिवेंट करे किसी भी टाइप के अनऑथराइज्ड एक्सेस से। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये भी इंश्योर करता है या ये कहता है कि आप ये इंश्योर करें कि जो ऑथराइज्ड पर्सन हो उनको वो सारी इंफॉर्मेशन और सारी राइट्स मिले बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, और जो अनऑथराइज्ड पर्सन हो उनको सेम टाइम में इतनी हार्श डिफिकल्टी फेस करनी पड़े कि वो एक्सेस ही ना कर पाए। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक अकाउंट के ऊपर 10 पासवर्ड लगा दिए और अभी अर्जेंट में आपको वो डेटा चाहिए, आप पासवर्ड ही भूल गए 10 में का, 10 में से 2 का भी पासवर्ड भूल गए, आपसे वो फाइल एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। सो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये नहीं कहता कि बस टफ बना देना है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये कहता है कि टफ उसके लिए बनाना है जो ऑथराइज्ड नहीं है, ताकि वो एक्सेस ना कर पाए। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये भी कहता है कि साथ ही साथ उसके लिए आसान बनाना है जो ऑथराइज्ड है। जो ऑथराइज्ड है वो आसानी से उसको एक्सेस कर पाए, आसानी से उसको यूज कर पाए। नाउ द नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी, ensuring information is safe from accidental or intentional modification or alteration। किसी भी तरीके के इंटेंशनल मॉडिफिकेशन, बदलाव, अल्टरेशन से बचाता है, या एक्सीडेंटल भी, सो दैट आपका जो रियल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर्ड रहे। नाउ थर्ड एंड द longest part of the session will be cyber security awareness. It is the most important part of the session also. Now, cyber security awareness is an ongoing process of educating and training about the threats that lurk in cyberspace। ये एक ongoing process है। ऐसा नहीं होता कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद हम और आप सभी लोग विद्वान हो जाएंगे और हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जहां हमें रोज जरूरत पड़ती है, इसकी हमें रोज सीखना है कुछ ना कुछ। हम हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें जानते जाएंगे, समझते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग
काम करते जाएंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स inculcate a sense of proactive responsibility for keeping oneself and organization and its assets safe and secure. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको प्रोएक्टिव भी बनाता है। प्रोएक्टिव मीन्स आप किसी भी चीज को करने के लिए पहले से तैयार है, आप पहले से रेडी हैं। आप समझिए, एग्जामिनेशंस आने वाली हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस स्कूल में। नाउ टीचर्स आर प्रोएक्टिव। कैसे? उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा रखा, या अब होने वाला होगा, अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो आप रिविजन्स पे लग जाएंगे। आपने क्वेश्चन पेपर तैयार करना स्टार्ट कर दिए हैं, या कई लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने टाइप भी करवा रखे होंगे या खुद से टाइप कर रखा होगा। सो आप क्या है कि एक इवेंट आने वाला है एनुअल एग्जामिनेशन जैसा, आप पहले से तैयार है, आपने सारी चीजें कर ली हैं। रीजन ये है कि आप अवेयर हैं कि जब एनुअल एग्जाम आता है तो आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं। ठीक वैसे ही साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आप इंश्योर करवाता है कि आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई, आपने एक लैपटॉप खरीदा, इसमें आप काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करने वाले हो, तो इस डेटा को सेफ कैसे रखा जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन होगा तो आप वो सारे प्रोसेसेस पहले से करते रहेंगे ताकि आपका डेटा चोरी ही ना हो। बीइंग अवेयर अबाउट साइबर सिक्योरिटी इज, वी कैन से, अ प्रिवेंटिव मेजर। प्रोएक्टिव को मैं और कॉमन टर्म्स में बता दूं, पटना में सीवियर कोल्ड है। आप सभी को अंदाजा होगा कि ठंडी बढ़ने वाली है, ठंडी बढ़ रही है, तो आपने क्या किया होगा, आपके जहां भी आपके कबर्ड में, अलमीरा में जो मोटे वाले जैकेट्स होंगे, जो विंटर वियर्स होंगे, आपने सब निकाल के रख रखे हैं, सब पहन रखे हैं। आपने अपने डाइट में वैसे चेंजेस ला दिए होंगे ताकि आपको ठंड से राहत मिल सके। वार्मर्स या ब्लोवर जो है वो आपने अपने घरों में यूज कर लिया होगा ना। ये जो हमने किया ये है प्रोएक्टिव होना ना। एक दूसरा एस्पेक्ट समझिए, बीइंग नॉट बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि ठंडी आने वाली है, मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक दवा ले आकर रख देता हूँ, कफ सिरप, कि क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा लगेगा, कफ सिरप ले आकर रखते हैं, सर्दी खांसी होगा तो पी लेंगे। ये वाला जो जो नेचर है ये हम लोग रखते हैं कंप्यूटर्स में कि वायरस आएगा तो स्कैन करके डिलीट कर देंगे। हमें ऐसा करना है कि वायरस आए नहीं, है ना। हम जैसे हम अपने शरीर के साथ करते हैं कि ऐसा करना है कि कोल्ड एंड कफ हो नहीं। ऐसा तो नहीं कि कफ सिरप के भरोसे बैठे हुए हैं कि हो जाएगा तो ठीक कर लेंगे। हम लोग वो रास्ते अपनाते हैं कि कोल्ड एंड कफ हो ही नहीं। ठीक उसी तरीके से इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी गैजेट्स हैं हमारे पास, हमें वो प्रोसेस अपनाना है कि प्रॉब्लम आए ही ना। एंड उसी को हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, और कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। नाउ, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में समझेंगे, और मैं काफी जनरल होकर बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज फिशिंग, मोस्ट कॉमन अटैक। मैंने अभी कमेंट में देख रहा था, एक सर ने लिखा था पूरा अच्छे से डेफिनेशन। फिशिंग इज द मोस्ट कॉमन अटैक, डेफिनेटली काफी कॉमन है ये। प्रोसेसेस क्या है, जनरली कॉल्स के थ्रू किया जाता है, अब एसएमएस, ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू भी किया जाता है, और सभी के लिए हमने एक अलग अलग नाम रखा रखा है। फिशिंग का ही एक पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग भी, तो हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। नाउ, कुछ कॉमन चीजें आपको क्या देखने को मिल सकती हैं जब भी आप एज अ विक्टिम पकड़े जाएं अगर फिशिंग में, तो द फर्स्ट थिंग इज, फिशिंग करने के लिए स्कैमर्स जब भी आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं, एक कॉमन चीज जो होती है वो होती है दे नीड टू वेरीफाई अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उनको आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, वो वेरीफाई करेंगे, वो मैच करेंगे, वो आपको लॉटरी दे में इनाम दे देंगे, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये आपको इस तरीके से आपसे बात करेंगे, इस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप हड़बड़ा जाए, अरे मेरे पैसे निकलने वाले हैं, मेरा बैंक अकाउंट जाम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम। मींस सेंस ऑफ अर्जेंसी वो क्रिएट करके आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम करना चाहते हैं, सो दैट आप सही डिसीजन ना ले पाए और हड़बड़ा के गलती करें। टू गुड टू बी ट्रू, ये एक और तरीका है। स्कैमर्स जो होते हैं काफी प्यार से बात करेंगे आपसे। जामतारा अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा, उसमें बच्चे जो है वो लास्ट में गाली वाली भी दे देते हैं, बट जो रियल स्कैमर्स है दे डू नॉट डू दैट। वो आपसे काफी अच्छे से बात करेंगे ना। एक सिचुएशन समझते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। डिफरेंस क्या होगा एक स्कैमर और एक जेन्युइन बैंक से अगर कॉल आएगी तो उसमें। ना आप समझिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए मेरे बैंक ने मुझे कॉल किया, हालांकि बैंक कॉल करती नहीं है, और उसको अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कहेगा कि सर आपके अकाउंट में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, आप ब्रांच विजिट करिए, यहाँ पे आपको सारा काम होगा। थोड़ा सा अच्छा हो भी गया वो, अगर वो मेरे से ऑनलाइन वेरीफाई करवाता भी है
और मैं एक बार मना करूँ कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा, मैं ब्रांच आ जाऊँगा, तो वो कॉल कट कर देगा। या फिर मैं अगर उससे इंक्वायरी लेने लगूँ कि कौन से बैंक से हैं, ब्रांच कहाँ है आपका, पोस्ट कहाँ है, हम तो कल ही गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि जेन्युइनली अगर बात सच है, अकाउंट में सही में कोई प्रॉब्लम है, तो नुकसान आपका है, बैंक वाले का बिल्कुल नहीं है। सो वो आपको कह देंगे कि सीधे-सीधे कि आप ब्रांच आके देख लीजिए सर क्या है, नहीं है, एंड दे विल डिस्कनेक्ट द कॉल। बट अगर स्कैमर का कॉल आया, द स्कैमर व्हाट ही और शी विल डू कि सर इन्फॉर्मेशन है सर, प्लीज कर लीजिए सर, वी आर हियर टू हेल्प यू सर, बस 2 मिनट में हो जाएगा सर, सर आपको सिर्फ अकाउंट नंबर देना है सर, अदरवाइज सिक्योरिटी एरर्स हो सकते हैं। वो आपके इतने अच्छे वेल विशर बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि बस दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे हेल्पफुल इंसान यही है। एंड व्हाट विल हैपन, आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन और आपके सारे पैसे जा सकते हैं। नाउ कॉल्स पे तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बट अगर मैसेज, ईमेल या एडवर्टाइजमेंट्स के फॉर्म में आपसे फिशिंग की कोशिश की जा रही है, तो आप स्पेलिंग एरर्स देखेंगे उसमें। कहीं ना कहीं स्पेलिंग में गलतियां होती है, कोई एक वर्ड आगे पीछे होगा, ऐसी गलतियां होती है जो जल्दी कैच ना करे। एंड स्कैमर्स आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे काफी सारे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, बी श्योर कि अगर मैं किसी एक वर्ड का बीच का एक दो स्पेलिंग इधर उधर कर दूं ना, आप में से कई लोग उसको एक बार सही पढ़ के निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता कि एक एक की स्ट्राइक्स को वो पढ़ रहा है, वो ओवरऑल देख रहा है, उसको सही लग रहा है वो पढ़ दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है। ठीक है, कई बार मैं काफी कॉमन है, लकड़ी और लड़की पढ़ने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, बड़े लोगों से भी, बच्चों से भी। क्यों? क्योंकि ब्रेन एकदम सटीक होकर नहीं पढ़ रहा है लकड़ी और लड़की को। तो इसका फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। वो छोटा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे और आपको सर्कुलेट कर देंगे। आप हड़बड़ी में देखेंगे नहीं, आप क्लिक कर देंगे और सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो चला जाएगा। नाउ फीचर्स ऑफ फिशिंग ईमेल क्या है? लिंक और अटैचमेंट्स के फॉर्म में जा सकती हैं। अलर्ट आ सकता है कि आपका अकाउंट ट्रबल में है, कोई नुकसान होने वाला है, कोई खतरा है। या फिर जेनेरिक ग्रीटिंग्स के फॉर्म में भी ये जाती हैं। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू सेफगार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट फिशिंग? सबसे पहला चीज, एम्प्लॉय योर कॉमन सेंस। जैसा मैंने कहा कि अगर बैंक से कॉल आएगा तो किस तरीके से बात करेंगे, मैंने आपको बताया। सो एम्प्लॉय योर कॉमन सेंस, कि क्या ये चीजें हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या रियलिस्टिक है, जो आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो देना चाहिए? नेक्स्ट, डू नॉट ओपन सस्पिशियस और स्ट्रेंज ईमेल्स। अगर ईमेल्स के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई सस्पिशियस ईमेल है, कोई स्ट्रेंजर से कोई ईमेल आई है, तो आप उसको ओपन मत करिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पीडीएफ अटैचमेंट्स, अगर अननेसेसरी अटैचमेंट्स आए हैं, उनको ओपन मत करिए। अपने ब्राउजर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी हैं, उनको अपडेट रखिए ना। टीचर्स वाली कम्युनिटी में या इनफैक्ट एल्डर्स कम्युनिटी में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि हमारे पास अपडेट्स आते हैं और हम लोग उसको टाल देते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी क्लास लेने जाना है, बाद में कर लेंगे। मुझे आप एक काफी नॉर्मल सी बात बता दीजिए, आपको अपने हाथ से अपडेट करना है उसको। मैं ये बात अपने फेलो टीचर्स को भी बोलता हूँ, या मैं जिसको भी देखता हूँ कि वो अपडेट को स्किप कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आपको हाथ से ऐसे ऐसे करके अपडेट करना है। इफ यस, तब ठीक है, आपको खाली टाइम की जरूरत है। इफ नो, अपडेट वाले बटन पर क्लिक करिए एंड गो टू योर वर्क। फोन, कंप्यूटर जो भी होगा वो ऑटो अपडेट ले लेगा ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक अपडेट के साथ एक नया सिक्योरिटी फीचर मिलता है जो इंश्योर करता है कि आपका जो भी फोन है, गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट, नेवर ट्रस्ट अलार्मिंग मैसेजेस। अचानक कोई मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट खतरे में है, थोड़ा शांत रहिए। अगले दिन बैंक ब्रांच विजिट करिए, वहां देखिए अचानक फोन पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपके फोन में वायरस से सारा डेटा चोरी होने वाला है। कोई एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, फोन ऑफ करके रख दीजिए, ज्यादा हड़बड़ाइए मत। तो अगर बैटरी अलग हो जाती है आपके फोन से, उसको अलग करके रख दीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाहट में ही इंसान गलतियां करता है। और फिशिंग अटैक्स का एक मेन पर्पस वो करते हैं, वो आपको हड़बड़ा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी में गलतियां करें। अवॉइड क्लिकिंग एनी एम्बेडेड लिंक्स इन ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप। अभी 10 मिनट पहले एक ग्रुप है मेरे फोन में, उस पे एक मैसेज आया था कि राम मंदिर के जो भी पूजा होने वाली है, राम मंदिर का जो 22 को इनॉग्रेशन है,
उसकी खुशी में फ्री गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं और एक लिंक आया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा कोई ना कोई डेटा चोरी हो जाएगा, मेरे अकाउंट से कुछ पैसे जा सकते हैं। सो क्यूरियोसिटी नहीं दिखानी है। इग्नोर दैट काइंड ऑफ मैसेजेस, इग्नोर दैट काइंड ऑफ ईमेल। आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर ऑप्शंस है तो, डिलीट कर दीजिए आप, बट डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक। नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी स्पैम। किसी भी स्पैम को रिस्पॉन्ड मत करिए। मैंने देखा है बच्चों को, जब स्पैमर्स का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैसेज व्हाट्सएप एक नया जगह बना है जहाँ पे स्पैमर जो है वो कांटेक्ट करते हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम पे या और भी शॉर्टकट वे ऑफ अर्निंग मनीज के तौर पे। सो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ तो फंस जाते हैं उसमें, कुछ बच्चे प्रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं उनके साथ। डू नॉट डू दैट। आपकी स्क्रीन टाइम आपको फंसा सकती है। यू डू नॉट नो कि आप किस मैसेज के साथ, किस ईमेल के साथ, किस लिंक के साथ कौन सा फाइल एम्बेडेड है, और वो एक बार आप क्लिक करते हो तो वहां से कौन कौन सा डेटा चोरी हो जाता है। तो अगर स्पैमर है, अगर स्पैम हो रहा है एंड यू हैव द नॉलेज कि हाँ स्पैम है, काइंडली ब्लॉक, डिलीट और इग्नोर। रेस्पॉन्ड मत करिए ना। सोशल इंजीनियरिंग लगभग फिशिंग जैसी है। यहाँ पे आईटी हेल्प डेस्क स्टाफ के तौर पे और भी टेक्नीशियन के तौर पे या किसी भी और का एक फेक प्रोफाइल बना के बेसिकली यहाँ लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। वो बताएंगे कि वो हैं कोई और, बट एक्चुअली में वो होते कोई और है। मेन पर्पस अगेन उनका फाइनेंशियल गेन है। वो आपसे यूजर आईडी, पासवर्ड जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी ऐसी जगह पे वो जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए ना। वेशिंग और स्मिशिंग हो सकती है इसमें, वेशिंग एंड स्मिशिंग। वॉइस मेल्स के थ्रू जो फिशिंग की जाती है वेशिंग, एंड एसएमएस के थ्रू जो फिशिंग की जाती है वो स्मिशिंग कही जाती है। इससे बचने का तरीका क्या है? चेक द सोर्स। आप अपना सोर्स चेक कर लीजिए। सोर्स कौन सा सोर्स है, कहां से कनेक्ट किया जा रहा है। ब्रेक द लूप। सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर कही जा रही है, लूप तोड़ दीजिए। ठीक है, लूप तोड़िए और आप बच जाइएगा। एंड ये लूप तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, चेन को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ क्या है, लोग बेकार सी चीजों में अर्जेंसी को जो बढ़ावा देते हैं, इस जो चेन को है ना वो आगे बढ़ावा देते हैं। लाइक एक कॉमन मैसेज आएगा किसी भी फेस्टिवल के टाइम में, या सोमवार के दिन आ जाएगा कि ये वाला मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए और शिव जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ढेर सारी खुशियों से भर देंगे। नहीं करने पर आपको ढेर सारा दुख मिलेगा। लोग इसको 10 लोगों तक फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे के 10 भी यही काम करते हैं। नाउ यू टेल मी, शिव जी को और कोई काम नहीं है, वो सुबह सुबह व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि किसने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया या नहीं किया। इट इज वेल नॉन कि ये बेकार की चीज है, सबको पता है, जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको भी पता है, बट वो कर रहे हैं, वो चेन ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। काफी छोटी सी चीज है ना, बट चेन ब्रेक करने की हमें आदत डालनी है कि ऐसी चीजें हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अचानक एक लिंक आता है, अमेजोन फ्री गिफ्ट बांट रहा है, आप क्लिक करते हैं, आपसे सारा एड्रेस वगैरह ले लिया जाता है, गिफ्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहा जाता है 10 लोगों को आप फॉरवर्ड करिए, गिफ्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। आप 50 लोगों को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन वो 10 का नंबर कंप्लीट नहीं होता। फिर वो आगे के 50 भी यही काम कर रहे हैं। नाउ आपके साथ अगर एक बार हो समझ में आता है, ये हर साल होता है, साल में 2-3 बार होता है, हम लोग हर बार फंसते हैं इसमें। क्यों करना है? आपको एक बार बस समझ में आएगा कि फेक है, अगली बार से मत करिए। 50 लोग आगे के बचेंगे, उनसे और कितने लोग बचेंगे। बट हम लोग करते क्या है, हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। सो ब्रेक द लूप। अगेन अप्लाई कॉमन सेंस। साइबर सिक्योरिटी में एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते रहना है। सोचते रहना, समझते रहना कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आपको अचानक कॉल आए कि सर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। क्यों? क्योंकि आपने ना 1 जनवरी को रिचार्ज करवा लिया था अपने फोन में। ना आपने 200 का रिचार्ज कराया अपने फोन में, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग रही है। क्या ये रियलिस्टिक है? अंबानी जी क्यों ही देंगे आपको 1 करोड़ रुपए? या आपने एक लिंक पे क्लिक किया था, आप बैठ के एक दिन सोनी चैनल पे केबीसी देख रहे थे तो आपको 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बस आपको अकाउंट नंबर देना है आपका। तो क्या ये सच में हो सकता है? इज दिस अ थिंग फॉर रियल? क्या ऐसा है, पॉसिबल है? अगर हाँ तो ठीक है, दीजिए नंबर। बट यू नो कि आप अगर एक बार भी ऐसा सोच ले कि ऐसा क्या पॉसिबल है, सच में ऐसा हो सकता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ये सच नहीं है। तो उसको छोड़ देते हैं।
देखा, यू हैव नोटिस दिस, किसी ने चैट बॉक्स में एक भेजा है वैसा ही कुछ फिशिंग टाइप का लिंक। सो वैसी चीज़ों से हमें खुद को दूर रखना है ना। व्हाट डू दे नो? अगर आपको शक हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको लग रहा है लेजिटिमेट भी हो सकता है, तो आप जाइए लास्ट तक। आप ये समझने की कोशिश करिए कि उनको कितना पता है। आपके आपके जो अकाउंट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो कितना जानते हैं। इतने से कन्फर्म हो पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आस्क फॉर आईडी। हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आईडी के लिए लोग नहीं पूछते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग अब धीरे-धीरे समझ रहे हैं। आपके घर पे आ जाए कोई पुलिस वाला ड्रेस पहन के, आप मान लेते हैं वो पुलिस है। ट्रेन में कोई ब्लैक कलर का कोट पहन के आ जाए, आप मान लेते हैं टीटी है। अगर आपको शक हो रहा है, आईडी के लिए पूछ लीजिए, है ना। आईडी उनको मिली ही इसलिए है ताकि वो दिखा सके कि हाँ, मैं हूँ, आई एम द लेजिटिमेट पर्सन। ऑनलाइन भी अगर कोई ऐसा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये फेक हो सकता है, आस्क फॉर द आईडी। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योर योर डिवाइस। अपने डिवाइस को सिक्योर करके रखें सो दैट प्रॉब्लम से आप दूर रहें। साइबर स्टॉकिंग, रियल लाइफ में जिस तरीके से कोई आपका पीछा कर लेता है सुबह से लेकर शाम तक, आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पहले के ज़माने में बहुत होता था ये, आज से कुछ साल पहले तक। अब उसका एक नया फॉर्मेट है कि लोग बस आपको आपके हर सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर लेते हैं और आपके लिए एक खतरा बन जाते हैं। वो आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ना, हमारी आदत क्या है? हम में से कइयों की आदत है, हम लोग सुबह उठते हैं और इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। वी टॉक अ लॉट ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट। सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज। साइबर स्टॉकिंग जो कर रहा है उसको पता हो गया कि आप कितने बजे सुबह में उठते हो, है ना। उसके बाद आप ऑफिस जाने लगोगे तो आप अपनी गाड़ी में निकले, आप बढ़िया सा आपको एक व्यू दिखा, आपने फोटो क्लिक किया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, जस्ट सॉ मेस्मराइजिंग व्यू ऑन द वे टू माय ऑफिस। अब साइबर स्टॉकर जो है आपका, उसको पता है आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं। उसके बाद बहुत बिजी थे, लंच में टाइम मिला, हैविंग अ वेरी बिजी डे। सामने वाले को पता चल रहा है आपका लंच ब्रेक कितने बजे हो रहा है। आप ऑफिस से निकले एकदम थका हुआ, एक पोस्ट डाल रहे कि इंसान ऑफिस में काम कर करके अपनी आधी जिंदगी बिता दे रहा है। साइबर स्टॉकर को अगेन पता चला आप कितने बजे छुट्टी हो रही है आपकी। ना, इतना इन्फॉर्मेशन इनफ होता है आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर लेने के लिए। और इतनी एक्टिविटी को ट्रैक करने के बाद आप समझिए सर, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका यही काम है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, आपसे पैसे चुराएगा। आप दे रहे हैं इतने सारे इन्फॉर्मेशन। बच्चों के साथ और दिक्कत है। मैंने देखा है, मैंने इनफैक्ट मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में वो क्रैक करते हैं। वो अपना रिजल्ट जो है वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एज अपडेट्स लगा देते हैं वो कि पास दिस एग्जाम। अब उन्होंने ऐसा लगाया तो उनका रोल नंबर, उनका नाम, उनका फादर्स नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ सेंटर था, कौन से एग्जाम में वो पास हुए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी भी आया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से करने के बाद आप खुद सोचिए अपने मन में, क्या आपके पासवर्ड्स इससे ज़्यादा कहीं दूर के होते हैं? नहीं होते हैं। इसी के आस-पास से होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या किया आपने, कम किया। जो अभी क्या था ना कि एक रैंडम पासवर्ड ढूँढना, ऊँट के मुँह में जीरा आप कह लीजिए, वो वैसा होगा। बट आपने क्या किया, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अब मेरे पास ऑप्शंस हैं कि अच्छा हाँ, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब मैं काफ़ी आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ या क्रैक कर सकता हूँ पासवर्ड्स को। सो कैसे बचना है साइबर स्टॉकिंग से? बी सिलेक्टिव। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपका फॉलोवर कौन है, आपके फ्रेंड्स कौन है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें, बी वेरी सिलेक्टिव। नेक्स्ट, लर्न टू रिमूव समवन फ्रॉम योर फ्रेंड लिस्ट। आपके फ्रेंड लिस्ट से आपको अचानक कोई दिखा कि अरे नहीं नहीं, ये तो नहीं है, इसको मैं नहीं जानता, या अब आपकी जरूरत नहीं है। रिमूव दैट पर्सन। लर्न टू रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट। लर्न टू ब्लॉक समवन if a person is making you uncomfortable. Again, secure your phone with passwords. सोशल मीडिया वेबसाइट्स को अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू लॉगिन करके यूज कर रहे हैं तो लॉग आउट करना मत भूलिए। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचिए। वैसा पर्सनल इंफॉर्मेशन जिससे आपको खतरा हो सकता है, प्लीज डू नॉट शेयर दैट इंफॉर्मेशन।
लोकेशन सर्विसेज ऑफ रखिए, वैसी हर ऐप का, वैसी हर चीज़ का जिसमें नीड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ़ोन में कई सारे कैमराज़ होते हैं ब्यूटी प्लस टाइप के या स्नैपचैट टाइप के, सोशल मीडिया को हमने दे रखा होता है लोकेशन सर्विस, लोकेशन एक्सेस, तो नहीं देना है उनको, बिकॉज़ दे डू नॉट नीड दैट। गूगल मैप्स को ज़रूरत है, समझ में आता है, मैं दूँगा उसको लोकेशन एक्सेस। ज़ोमैटो, स्विगी वालों को ज़रूरत है, घर पहुँचाएँगे वो खाना। अमेज़न वालों को ज़रूरत है, समझ में आता है, मैं उनको दूँगा। बट मैं यूट्यूब को क्यों दूँ? या अमेज़न प्राइम को मैं लोकेशन एक्सेस क्यों दूँ? उनको क्यों जानना है कि मैं दानापुर से बैठ के कोई मूवी देख रहा हूँ, पटना से बैठ के देख रहा हूँ, शेरपुर से बैठ के देख रहा हूँ, नौबतपुर से देख रहा हूँ, मनेर से देख रहा हूँ, जहानाबाद से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ, उनको उससे क्या मतलब? मैंने पे किया है, मैंने सब्सक्राइब किया, अब मैं देखूँगा जहाँ से मन करे। मुझे मन करेगा मैं बिस्कोमान भवन के सबसे ऊपर बैठ के देखूँगा। व्हाई डू यू वांट टू नो कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ? आपको ज़रूरत नहीं है। सो वैसी किसी भी ऐप को नहीं देना लोकेशन एक्सेस जिसको ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग, कंसल्ट टू योर रिलेटिव और फ्रेंड और एनी एल्डर जो कि आपकी हेल्प कर सके। नाउ एटीएम फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड्स में मोस्ट कॉमन आते हैं कार्ड थेफ्ट, पिन कॉम्प्रोमाइज, कार्ड स्कीमिंग, कार्ड रिवर्सल एंड कैश ट्रैपिंग। नाउ कार्ड थेफ्ट, अगर कार्ड ही चोरी हो जाए तब तो आप भी जान रहे हैं आपको क्या करना है, कार्ड्स ब्लॉक करवा देने हैं जल्द से जल्द। आपको जैसे ही पता चला कि आपका कार्ड आपके पास नहीं है, बिना सोचे सरमाए हुए जस्ट इंश्योर दैट योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, फ्रीज हो जाए वो कार्ड, और आप दोबारा इशू करवा सकते हैं उसके लिए। पिन कॉम्प्रोमाइज, अगर कहीं से किसी को पता चल जाए आपका पिन तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कार्ड स्कीमिंग में क्या होता है, कार्ड्स के पीछे कार्बन स्ट्रिप होता है और एक चिप होती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी कार्ड को एक दूसरे कार्ड से अलग करती हैं। अगर इन दोनों कार्ड्स की कॉपी हो जाए, इन दोनों चीजों की कॉपी हो जाए तो कार्ड आपका एक नया डुप्लीकेट कार्ड बन जाता है। तो इसके थ्रू भी एटीएम फ्रॉड्स किए जाते हैं। कैश रिवर्सल एंड कैश ट्रैपिंग दो ऐसे फ्रॉड्स हैं जो एटीएम मशीन के पास किए जाते हैं। बेसिकली जहाँ से पैसे निकलने वाला जो हमारा ट्रे होता है उसके ऊपर वो एक एडिशनल ट्रे लगा देते हैं, सो दैट पैसे निकले तो बट उस ट्रे में फंसे रह जाए। तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो पैसा फंस गया तो आपको ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या आपको ऐसा लग सकता है कि कार्ड कैश रिवर्स हो गया तो आपको अगेन ब्रांच जाना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है। इससे बचने के लिए आपने देखा होगा एटीएम मशीन पे अब ऑप्शंस आ जाते हैं, लिख दिया जाता है कि आप अपना पैसा ले लो, एटीएम उसको रिवर्स नहीं करने वाला है। और क्या-क्या कर सकते हैं आप? आप जब भी एटीएम यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथ से इससे आपको पासवर्ड डालना है तो ऐसे करके कवर करके आप पासवर्ड डालिए, सो दैट किसी और को ना दिखे। ये इंश्योर करिए कि जब आप एटीएम के अंदर जा रहे हैं तो कोई और नहीं हो अंदर, कोई ताका-झाकी ना हो रही हो। ऑलवेज़ प्रेफर एटीएम मशीन व्हिच इज़ नियर टू एनी बैंक ब्रांच। किसी भी बैंक ब्रांच के आस-पास की जो एटीएम मशीन है उसको प्रेफर करिए, सो दैट आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा रहे, क्योंकि जहाँ बैंक ब्रांच के आसपास की जो एटीएम मशीन्स होती हैं, उन पे मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होता है उनका, आपको वहाँ अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स मिल जाएँगे, सिक्योरिटी फीचर्स आपको अच्छे मिल जाएँगे, जो चांसेस रहते हैं कि आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। एक और कोशिश हमें करनी चाहिए कि एटीएम्स का यूज़ बैंक टाइम में करें अगर आप पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ ना करें। हमारे पास अदर यूपीआई वगैरह के ऑप्शंस हैं, इन अ सिक्योर्ड वे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रिवेंशन, एक तो हम लोग हमेशा ये पहला लाइन है, अवॉइड यूज ऑफ डेबिट कार्ड्स टू बाय थिंग्स, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो आप एक ऐसा कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें पैसे काफी कम हो, बस उतने ही हो जितने का लॉस आप सह सके, 2000, 5000, 10,000, उससे ज्यादा ना हो। बी केयर विथ स्टोर वैल्यू एप्स, स्टोर वैल्यू एप्स जितने भी हैं उन पे केयरफुल रहें। आपके कार्ड्स के पीछे जो सीवीवी नंबर्स वगैरह होती है उन पे स्टिकर्स वगैरह आप लगा के रख सकते हैं, सो दैट आपका कार्ड जो है वो नंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। मोबाइल बैंकिंग जब भी आप कर रहे हैं तो साइन आउट कर दें। बैंक एक्टिविटी को रेगुलरली ट्रैक करते रहें ताकि आपको पता चले कि आपके बैंक में क्या क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड और इवन डेबिट कार्ड नंबर ना दें। फ्री ट्रायल ऑफर से हमेशा बच के रखें। इसके बावजूद अगर भी कोई फ्रॉड हो तो इमीडिएटली आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। ना ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ, एंड आई थिंक ये पहली बार होगा जब हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सेफ्टी ऑन द मूव, जब हम लोग मूवमेंट पे, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी हमें साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखनी है। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग ट्रैवल करने गए हैं और उनके साथ स्कैम हुआ है। ना क्यों होता है ये? हम लोग पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, सो पब्लिक वाईफाई इज लाइक मेला।
जहाँ पे पॉकेट मार होते हैं आपके पॉकेट से पैसे चुराने के लिए तैयार। सो नेवर कनेक्ट थ्रू अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। वहां से कनेक्ट मत होइए, आप अपने डेटा को यूज करिए। आपको लगता है कि आप बाहर जाएंगे, आपको ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो आप एड ऑन पैक्स जो है उनसे रिचार्ज करवा के जाइए। पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन को मत यूज करिए। यूएसबी चार्जिंग स्टेशन आप समझिए, दिस इज अ डेटा केबल। इसमें एक साइड अडेप्टर लगा हुआ होता है, आपको अडेप्टर भी दिखा दो, तो एक साइड अडेप्टर लगा होता है। नाउ पब्लिकली ऐसे चार्ज करना इज वेरी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। खतरे की बात तब होती है जब आप इसको ऐसे चार्ज करते हो, जहाँ पे कहीं एक यूएसबी केबल है, आप वहां लगा रहे हो और इसको फोन में लगा रहे हो। आपको ध्यान होगा, ये सिर्फ यूएसबी केबल नहीं है, ये एक डेटा केबल है। इसके थ्रू आप डेटा भी ट्रांसफर करते हो, तो वो डेटा भी ट्रांसफर हो सकता है। नाउ अगर आपको रास्ते में पड़ा हुआ कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी यूएसबी स्टिक मिलता है, मत उठाइए। उठा भी लेते हैं तो उसको अपने सिस्टम, अपने पासवर्ड, सॉरी अपने मोबाइल फोन, अपने किसी भी लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंस्टॉल करके चेक मत करिए कि उसमें क्या है। देयर इज अ वेरी कॉमन phrase in English, curiosity kills the cat, do not be the cat। अपना करंट लोकेशन कभी शेयर मत करिए सोशल मीडिया पे कि आप कहाँ घूम रहे हैं। किसी अननोन स्ट्रेंजर के फोन से, चार्जर से, पावर बैंक से अपना फोन चार्ज मत करिए कभी भी। अपना कोई भी डिवाइस चार्ज मत करिए। इनफैक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है तो उसको ऑफ करके रखिए। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करिए। मैं आपको एक और कॉमन तरीके से समझा देता हूँ। आप सपोज मुझे आज रात में ट्रेन पकड़नी है, मुझे कहीं जाना है बाहर, मुझे एक और ट्रेनिंग लेने जाना है, आप ये मान के चलो। तो मैं अपनी पैकिंग्स करूंगा, अपने कपड़े वपड़े, जूते वूते जो भी हैं वो सब कुछ रखूंगा। तो अब हमें एक हैबिट डाल लेनी है कि जब हम वो पैकिंग कर रहे हैं ना, तब हम इसे भी अपडेट कर लें, फुल चार्ज कर लें इसको, इसके डेटा वगैरह को चेक कर लें और सारे ऐप्स को अपडेट करके रख लें, सो दैट बाहर कहीं किसी वाईफाई में कनेक्ट होकर मुझे इसको अपडेट ना करना पड़े, कनेक्टिविटी की कोई इश्यूज ना आए और बेटर सिक्योरिटी फैसिलिटीज मिले। प्राइवेसी स्क्रीन का यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे, ताकि आपके स्क्रीन जो है वो प्राइवेट रहे, अगल बगल से लोग ताका झाकी करके ना देख ले कि क्या चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप बसें, ट्रेन, ऑटो में बैठते हैं, आप फोन यूज करते रहते हैं, आप भी मूवी देख रहे हैं, आपके बगल वाले भी देख रहे होते हैं और उनको कोई ऑडियो भी नहीं सुनाई दे रहा होता क्योंकि आपने ये लगा रखा है। सो वैसी चीजों से बचने के लिए आप प्राइवेसी स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। नाउ साइबर सेफ्टी एंड स्कूल्स, तीन तरीके के खतरे हो सकते हैं। साइबर थ्रेट्स जो हैं वो आउटसाइड स्कूल्स, जहाँ पे क्रिमिनल बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, हैकिंग की जा सकती है, स्पैमिंग की जा सकती है। सेकंड आता है थ्रेट्स फ्रॉम इनसाइड द स्कूल, जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड स्टाफ की मिलीभगत के कारण डेटा लीक हो सकता है या और भी दूसरा कोई खतरा आ सकता है। थर्ड वन इज एक्सीडेंटल साइबर इंसिडेंट्स। एक्सीडेंटल साइबर इंसिडेंट्स में क्या हो सकता है, लोगों से गलती से, सपोज कोई यूएसबी ड्राइव है या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो मिस कर गए, तो उसके कारण लॉस हो सकता है। सो इनसे भी हमें बच के रहना है। इसके अलावा आपको जिन चीजों से बच के रहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉमन फीचर्स, लाइक पासवर्ड्स कैसे रखने हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स कैसे रखने हैं, वो सारी चीजें बता देता हूँ। मैं बेसिकली ओवरऑल चीजें मैं आपको अब बता देता हूँ, सो बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मेरा एक पीपीटी है, पीपीटी के कुछ स्लाइड्स हैं, अ फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस करके, मैं उसको जरा प्ले कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। यस, फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस समरी। क्या करना है आपको, योर चेकलिस्ट, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब पहला, रिव्यू योर प्राइवेसी सेटिंग। खुद को सेफ रखने का तरीका क्या है, साइबर सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिव्यू द प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर सोशल मीडिया, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स एंड ऐप अकाउंट। सारी सेटिंग्स देख लीजिए, आपने नहीं देखा आप आज जाके देख लीजिए। नेक्स्ट, नो हू टू रिपोर्ट एनी अनयूजुअल एक्टिविटी टू। इफ यू आर नॉट श्योर, आस्क योर लाइन मैनेजर और आईटी टीम। प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स पे आप ये समझिए कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिख रही है, बताना किसको है। नहीं पता, रेज अ कंप्लेंट टू द आईटी टीम। चेक योर डिवाइस इज सेट टू रिसीव अपडेट्स ऑटोमेटिकली। ये आप चेक कर ले कि आपकी डिवाइस पे अपडेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो रहे कि नहीं। इफ नॉट, इंश्योर कि वो हो। नेक्स्ट, सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड
and switch on two factors authentication if available for your most important accounts. Remove any app that have not been downloaded from official store. आपने अगर किसी official store से लाइक गूगल प्ले स्टोर और फोन्स के अपने भी आते लाइक सैमसंग की अगर है तो सैमसंग गैलेक्सी स्टोर आता है, एमआई की अगर है तो एमआई एप्स करके अगर आता है, तो अगर ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोडेड है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको रिमूव करके ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करिए। चेक दैट द पासवर्ड फॉर द वर्क अकाउंट इज यूनिक। ऑल्सो चेक दैट आपके वर्क अकाउंट का जो पासवर्ड है वो सेव्ड ना हो। यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग काफी टाइम सेव कर देते हैं, हमें लगता है आसान है उसको कर देना, बट आप समझिए यूजर आईडी और पासवर्ड को सेव करके रख देना इज समथिंग लाइक आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर में बाहर से आपने ताला लगाया और चाबी ताले में छोड़ दी, क्योंकि बाहर गुम हो सकती थी चाबी, तो आपने इजी रखने के लिए उसको चाबी को ताले में छोड़ दिया कि जब मैं वापस आऊंगा ताला खोल के अंदर घुस जाऊंगा। नाउ पासवर्ड सेव करके रखना इज वेरी सिमिलर टू दैट, फिर कोई भी आके कर सकता है। नेक्स्ट, कैसे आप पासवर्ड को स्ट्रांग रख सकते हैं? 5 इजी वेज टू स्टे प्रोटेक्टेड। स्ट्रांग और यूनिक पासवर्ड रखिए, अपडेट्स को पोस्टपोन मत करिए, डेटा जो है वो सही फोल्डर्स और ड्राइवर्स में रखिए, फिशिंग वगैरह के लिए अवेयर रहिए, सोशल इंजीनियर अटेम्प्ट से बचे रहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डिवाइस लॉस्ट हो जाता है, कोई डेटा स्टील होता है या लॉस्ट होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। स्ट्रांग पासवर्ड्स के लिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स, इन चारों चीजों का यूज करना है और तब पासवर्ड बनाना है ना। 3 एग्जांपल्स हमारे पास है। पासवर्ड 2 वीक पासवर्ड है, डेफिनेटली आप समझ रहे हैं। सेकंड पासवर्ड जो है स्मॉल x 77, स्मॉल i कैपिटल L, स्मॉल y कैपिटल E हैज 0। देखने में काफी स्ट्रांग पासवर्ड लगता है, बट इसको हम लोग मीडियम पासवर्ड्स कहते हैं, ये एवरेज पासवर्ड्स, ये स्ट्रांग पासवर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अगर याद हो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए तो काफी मुश्किल हो, बट ऑथराइज्ड एक्सेस के लिए इजी हो। आप समझिए X77ILYE हैश 0 को याद रखना काफी मुश्किल है, तो ऑथराइज्ड पर्सन के लिए भी ये काफी मुश्किल बनाता है। सो ये एक गलत पासवर्ड है। नेक्स्ट इज सी लव्स ITC #U। ये पासवर्ड गेस करने के लिए, एक अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए गेस करने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल, बीच में एक यूनिक सिंबल दिया हुआ है एंड एक ऐसा लाइन लिखा गया है जो दूसरे कोई गेस नहीं कर पाएंगे, बट जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए काफी आसान है गेस करना ना। 4 स्टेप्स टू बेटर एंड सेफर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज। 4 स्टेप जिससे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छा हो सके। पहला, बी अवेयर ऑफ विच सर्विसेज आर अप्रूव्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस इन योर वर्क प्लेस। वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर आपके वर्क प्लेस पे हो रही है तो आप ये समझ के रखिए कि कौन कौन सी चीजें अप्रूव की गई हैं। अननेसेसरी फाइल्स वगैरह को क्लोज कर दीजिए स्क्रीन शेयर करने से पहले। दूसरे पार्टिसिपेंट्स अगर कई ज्यादा कुछ शेयर हो जा रहा है उनसे गलती से, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, आप इसको ऑफ कर लीजिए। उसके बाद ओनली शेयर व्हाट इज नेसेसरी। सिर्फ वो शेयर करिए जो नेसेसरी है, वो मत शेयर करिए जो नेसेसरी नहीं है। जस्ट लाइक इस सेशन के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना पीपीटी शेयर किया है, मैं इसको मिनिमाइज भी करूँ तो आपको कुछ और नहीं दिखेगा स्क्रीन पे। 3 टिप्स और इफ यू सस्पेक्ट अ फोन स्कैम, अगर फोन स्कैम हो रहा है तो कैसे आप करेंगे। कंसिडर वेदर द इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग कैन बी अब्यूज्ड इन एनी वे। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपसे बात हो रही है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या उस इन्फॉर्मेशन का कोई कुछ गलत फायदा उठा सकता है। पोलाइट रहिए, बट रिमेंबर टू सेट क्लियर बाउंड्रीज ऑन हाउ फार यू आर विलिंग टू गो। गुस्सा नहीं होना है, स्कैमर से भी बात हो रही है तो बट एक क्लियर बाउंड्री सेट करिए कि आप कितने आगे तक बढ़ने वाले हैं, आप क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। इफ यू आर बीइंग प्रेशर्ड इन एनी वे कट द कन्वर्सेशन। उसके बाद भी अगर प्रेशराइज किया जा रहा है, टाइम आउट लीजिए, कन्वर्सेशन कट करिए। आप सामने सामने बैठे हैं तो कोई और बहाना बना के निकलिए, बट स्कैम से बचिए। नाउ दीज आर अबाउट सम इनिशिएटिव्स, जैसे कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्टेन, उसी के जैसे NCIIPC, स्वच्छता साइबर स्वच्छता केंद्र, NCCC, साइबर सुरक्षित भारत, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, DSCI, NCRB एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसी इनिशिएटिव्स इंडिया में अब ली जा रही हैं, so that citizens of India remain safe. Now this is it from my side.
but I am open for all the question and queries related to cyber safety and security, and I am looking in the chat box. You can ask if you have any query. Someone has asked that what you have to do if your account is already hacked. First of all, it depends that which types of account is hacked. अगर आपका email हैक हुआ है तो ईमेल के लिए कई सारे रिकवरी ऑप्शंस होते हैं, आप यूज करके देखिए, अगर रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां से आप अपने पर्सनल डेटा हटा दीजिए। अगर आपके फोन वगैरह में लॉगिन है तो फोन वगैरह से उसको हटा के छोड़ दीजिए, भूल जाइए, एक नया क्रिएट कर लीजिए। विच ऐप इज सेफ फॉर शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन? नो वन इज सेफ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई भी ऐप सेफ नहीं है, क्योंकि हर ऐप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुकीज वगैरह स्टोर करता है। और यस, डेफिनेटली मैं बिहार से हूँ, मैं पटना से ही हूँ, सो कोई भी सेफ नहीं है। इज आईफोन सेफ? पता नहीं, मैंने यूज नहीं किया आईफोन का। जब तक मैं यूज नहीं करूंगा मैं बता नहीं सकता। आईफोन क्लेम्स दैट इट इज सेफ, बट ऐसा नहीं है। आईफोन यूज करने वाले लोगों के साथ भी हैकिंग और फिशिंग तो पक्के हो जाती है। सी, ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ क्या है कि आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे खतरा है, बट आपकी जो यूपीआई ऐप्स है लाइक गूगल पे, फोन पे, वहां पे गवर्नमेंट ने भी कई सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा रखी हैं। ऐप्स भी अपनी तरफ से देखते हैं सिक्योरिटी वगैरह को। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो क्या है कि किस एंड पे हैकिंग हो सकता है, कि आप जिस यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर रहे हो या आप जिस क्यूआर को स्कैन कर रहे हो, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज खतरा हो सकता है। कैन वी हैव योर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट टू पीएसएससी? मैं अभी यहाँ शेयर तो नहीं कर पाऊंगा। पाटलिपुत्र सहोदया हैव माय नंबर, दे कैन शेयर यू। सी, आधार डिटेल्स विथ अकाउंट नंबर सब तो कोर्ट्स की भी आ गई हैं कि उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आधार कार्ड इज जस्ट आईडी। आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी लिखा जाता है कि आधार कार्ड ना तो सिटीजनशिप प्रूफ करता है ना ही कुछ और, वो बस एक आई कार्ड है। तो धीरे धीरे बैंक वगैरह से भी उसके कंपल्सन को खत्म किया जाएगा, तो आधार कार्ड से ज्यादा चीजों के नुकसान होने की उम्मीद कम है। इफ समवन इज यूजिंग योर नंबर, मैम प्रीपेड ऑर्डर है तो ऑर्डर एक्सेप्ट करके घर पे रख लीजिए आप, ठीक है। पोस्ट पेड ऑर्डर है तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आप कंप्लेन कर सकते हैं जिस वेबसाइट पे ऐसा किया जा रहा है, सो दैट वहां से वो इंफॉर्मेशन हटा दें। Can I give personal information to any educational app? If the app is genuine, if the app is legitimate and you want to be connected with that app, आप दे सकते हैं उसको। अगर नहीं है तो फिर मत दीजिए। What should be done if DOS attack is on CBSE वेबसाइट स्कूल का? ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई वेबसाइट्स पे DOS अटैक आएगा तो सीबीएसई की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आईटी टीम है, वो उसको ठीक कर लेगी। सीबीएसई के साथ इश्यूज आते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ जाता है ना। सीबीएसई को लगता है कि हम लोग कर देते हैं, धीरे धीरे ट्रैफिक आएगा और लोग करते जाएंगे, बट होता क्या है कि हम लोग सभी एक्टिव हैं। हम लोग अपनी स्कूल का काम अपने फोन पे भी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां से वो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप इज सेफ और नॉट? व्हाट्सएप का जो वर्जन आपको गूगल प्ले वगैरह पे मिल जाता है, आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आईफोन स्टोर पे जो मिलता है वो काइंड ऑफ सेफ है। वहां से जो इन्फॉर्मेशन चोरी होता है वो चोरी नहीं कहा जाता है, एक्चुअली मेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को दे देता है, ट्विटर को दे देता है अब, सो दैट वो पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो दे सकते हैं। बट आपका जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड है, मैसेज किसी को नहीं मिलता, फोटोज नहीं देख रहे हैं वो, तो वो काइंड ऑफ सेफ है। जीमेल का पासवर्ड याद नहीं है तो क्या करना है? एंड माय फोन नंबर इज आल्सो नॉट अवेलेबल, देन व्हाट शुड आई डू? आपके फोन में अगर लॉगिन है तो वहां पे अपडेट्स आते हैं। अगर आपका फोन नंबर नहीं है तो आपका रिकवरी ईमेल होगा, वहां पे क्या है, इसके बाद भी अगर नहीं है तो एक रिकवरी क्वेश्चन डाला जाता है हर बार जब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उस क्वेश्चन को आंसर करके आप ले सकते हैं। नो, पैन नंबर का यूज करके कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। गूगल प्ले पे जो व्हाट्सएप मिलता है मैम वो ठीक है, एक व्हाट्सएप जीबी आती है,
वो सेफ नहीं है। व्हाट्सएप जीबी लेकिन गूगल प्ले पर नहीं मिलती है। आधार, पैन डिटेल एंड अकाउंट ऑल टुगेदर शुड बी शेयर्ड और नॉट। बैंक मांग रहा है अगर तो फिजिकल कॉपी ले जाकर दे दीजिए, अदरवाइज कहीं मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। स्कूल मांगते हैं डेफिनेटली सैलरी अकाउंट ओपन करने के लिए, उनको दे दीजिएगा। इफ मैं बताता हूँ, मैं आई एम नॉट ए लीजेंड पर्सन बट हैकर्स मेरा डेटा लेना चाहेंगे। रीजन ये है कि वो मेरे चेहरे मेरी आवाज का यूज करके ना डिप फेक जैसी कई सारी वीडियोस बना देंगे, ठीक है, या फिर मेरा इन्फॉर्मेशन लेके मेरे नाम पे वो 10-15 लाख का लोन उठा लेंगे, मेरा क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा। मोबाइल रीसेट कर दीजिए, मोबाइल फोन का पासवर्ड याद नहीं, मोबाइल रीसेट कर दीजिए। व्हाट्सएप और जीबी व्हाट्सएप इज सेफर। जीबी व्हाट्सएप आप समझिए ना, मैंने मैसेज डिलीट किया फिर भी आपको दिख रहा है, तो वो सेफ कैसे है? फ्रॉड कॉल्स कम फ्रॉम बैंक। देखिए बैंक्स डू नॉट कॉल। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो भी है, आप उनको कॉल करिए कस्टमर केयर को और उनको डीएनडी एक्टिवेट करने के लिए बोलिए, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस। फिर वो पूछते हैं कि कंप्लीट या पार्शियल, आप कंप्लीट डीएनडी एक्टिवेट करवा लीजिए, आपको ऐसे कॉल्स नहीं आएंगे। डिवाइस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डालिए, फिंगरप्रिंट लगाइए एंड वी हैव टू मेक अ न्यू कल्चर कि जैसे घर के बाहर ताला मार के जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, इसके लिए कोई बुरा नहीं मानता। वैसे ही अगर आप फ़ोन में पासवर्ड लगाए तो कोई बुरा नहीं मानेगा। थर्ड पार्टी ऐप्स प्रिवेंट करनी चाहिए हमें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई ऐसा ही ऐप है जिसके बिना आपका एकदम काम ही रुक जाएगा, तब तो मजबूरी है करना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ हमें उसको इग्नोर ही करना चाहिए। इस टेलीग्राम से टेलीग्राम को बनाया ही इसलिए गया था ना, ताकि वहां से आपकी कई सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट उसको अच्छे से ट्रैक या क्रैक ना कर पाए। आप वहां पे आपका जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रहे। सो आप समझ, जिसको चोरी करने के लिए ही बनाया गया वो सेफ नहीं हो सकता है। तो आप यूज करिए टेलीग्राम बट बी सेफ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां ज्यादा मत डालिए। व्हाट शुड बी डन इफ मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ इज कैन बी। देखिए, मोबाइल डिवाइस अगर आपका चोरी हो गया है ना, तो एक तो आईएमईआई नंबर के थ्रू जो कंप्लेन हमें करना होता है, वो कर ही देना होता है। बाकी आप साइबर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साइबर पुलिस के पास ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो ट्रैक कर सकते हैं। गूगल में आप अकाउंट जब बनाते हैं किसी भी नई मोबाइल में, जब आप उसको सिंक करते हैं, तो वहाँ गूगल ऑप्शंस मांगता है, फाइंड डिवाइस वगैरह का, और आपको क्लाउड कनेक्ट का ऑप्शंस देता है। लाइक मैंने अपने फ़ोन में अगर कर रखा है, तो मैं अगर चाहूँ तो इस फ़ोन को अपने लैपटॉप से भी लॉक कर सकता हूँ। तो वैसे फीचर्स हैं, आप एक बार उसको यूज़ करेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी। डेफिनिटली गूगल गूगल पे इज़ सेफ, अभी तक तो है। जब तक हैक नहीं कर ले कोई उसको, तब तक सेफ है। नो, थर्ड पार्टी ऐप्स कोई भी सेफ नहीं है। वो गेम्स हैं, कुछ भी है, वो सेफ नहीं है। व्हाट्सएप पर्सनल एंड व्हाट्सएप बिज़नेस में बस डिफरेंस इतना है कि व्हाट्सएप बिज़नेस में आप किसी भी कम्युनिटी में ऐड नहीं हो पाएँगे। व्हाट्सएप बिज़नेस में ऐड होने के बाद आप चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस में आप कैटलॉग्स वगैरह डाल सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप बिज़नेस, बिज़नेस वालों के लिए ही है, ताकि वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके। व्हाट्सएप पर्सनल हमारे लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए। वीडियो कॉलिंग इज़ सेफ, डिपेंड करता है अगेन आप किसको वीडियो कॉल कर रहे हैं, जैसे ये वाला कॉल सेफ है। बच्चे अगर गेम डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो एक जो फ़ोन बच्चे यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें एक पैरेंटल अकाउंट की सेटिंग आती है। फ़ोन्स में भी अब चाइल्ड केयर का ऑप्शन आने लगा है। बच्चों को फ़ोन हैंडओवर करने से पहले वो फीचर ऑन कर दीजिए, तो वो ना तो कुछ इंस्टॉल कर पाएँगे, ना कुछ डिलीट कर पाएँगे। लिमिटेड एक्सेस मिलेगा उनको फ़ोन का। ट्रू कॉलर इज़ सेफ और नॉट। आपका इन्फॉर्मेशन तो ले जाता है वो। सो इट इज़ नॉट वेरी सेफ। आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरे ले लेता है, आपके ओटीपीज़ वगैरह को वो रीड कर लेता है, तो वो सेफ नहीं है। वेबएक्स इज़ सेफ, यस। वेबएक्स इज़ सेफ। आपने वेबएक्स पे अगर एज़ अ गेस्ट लॉगिन किया तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट आप एक बार उस पे अकाउंट बना के देखिए, आपको समझ में आएगा कि वेबएक्स काफ़ी सेफ है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स आर सेफ, यस। आपके मैसेजेस वगैरह वहाँ से नहीं जा रहे हैं, आपका प्रोफाइल पिक्चर जा सकता है, आपका नाम वगैरह जा सकता है। इन व्हिच वर्ज़न चाइल्ड केयर इज़ अवेलेबल डिपेंड करता है, अलग-अलग ब्रांड्स के लिए अलग-अलग नाम से ही आता है, किसी में पैरेंटल कंट्रोल, बट अभी लगभग सब में आता है। एंड्रॉइड 12 के बाद ये सभी में आ रहा है, तो आप वो देख लीजिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए ज़मीन का कागज़। नॉर्मल कॉलिंग इज़ आल्सो सेफ। अब ये क्वेश्चन मज़ाक वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन एंड स्पेशल थैंक यू फॉर टू Patliputra Sahodaya for giving me a chance to conduct the session on cyber safety and security. Thank you very much.